Hello, good morning students. So today I am going to start the new article of geometry, that is the geometric progression, that is sum to infinite terms of geometric progression. In the previous lecture we discussed on the sum of n terms of first n terms of geometric progression. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा. Total 2 point exercise was on that sum of first n terms of geometric progression. In this lecture we discuss sum of infinite terms of geometric progression. So what is called infinite terms of geometric progression? So for that let us consider two examples. मैं ऐसे दो example लूँगा. You will get definitely total idea of this concept. Let us see the two examples. So first example. So here this is a geometric progression. Tn is equal to, that is r raised to n, or we consider this is a 1 by 2 raised to n. ये मैंने एक sequence ले लिया. So what will be the first term? n is natural number, that is 1 by 2. Second is 1 by 2 square. Third is 1 by 2 cube. Fourth is 1 by 2 raised to 4. Up to 1 upon 2 raised to n. This is the sequence 1 upon 2 raised to n. अब ये sequence geometric progression है because the first term is 1 by 2. Its ratio is constant, that's why this is a geometric progression. 1 by 2, 1 by 2 square, 1 by 2 cube, 1 by 2 raised to 4, 1 by 2 raised to n. अगर इसको हमने और simplify किया, so that becomes 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16, 1 by 32 upon this 1 by 2 raised to n. So by observation we say that, अगर इसको थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व किया, अगर इसकी वैल्यू हमने फाइंड की 0.5 आएंगे, इसकी वैल्यू हमें फाइंड के 0.25 आएंगे. मीन्स व्हेन दिस n becomes larger and larger, अगर ये जैसा जैसा n बढ़ता जाएगा, दिस इज द टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस बिकम्स निग्लिजिबल. ये टर्म निग्लिजिबल बन जाएंगे. निग्लिजिबल मीन्स अप्रोचेस टू जीरो. प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करो, जैसे जैसे n बिकम्स लार्जर एंड लार्जर मीन्स indefinitely larger, so the terms of the sequence becomes negligible. The terms of the geometric progression becomes negligible, means approaches to zero. So here if n becomes larger and larger, that is indefinitely larger, then terms of GP becomes negligible, that is approaches to zero. Negligible का मीनिंग क्या है? दैट अप्रोचेस टू जीरो. जीरो इज निग्लिजिबल टर्म, मीन्स विच हैज नो वैल्यू. अगर उसको हम क्या कहेंगे, मेरे पास 0 रुपीज़ है, आई वॉक 0 किलोमीटर्स मॉर्निंग, सो दैट इज जीरो इज निग्लिजिबल टर्म. सो हियर जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा तैसे टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस बिकम्स निग्लिजिबल, मीन्स अप्रोचेस टू जीरो. सो हियर दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 by 2, r इज इक्वल टू आल्सो व्हाट 1 by 2, विच इज लेस देन 1. r कैसा है? लेस देन 1 है. सो अप्रोचेस टू जीरो मीन्स हियर 1 by 2 raised to n, इट इज इक्वल टू व्हाट 0. दिस टर्म अप्रोचेस टू जीरो. ये टर्म कैसे बन जाएंगे? अप्रोचेस टू जीरो. वन मोर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर सेकंड. Tn इज इक्वल टू, सेकंड सीक्वेंस, Tn इज इक्वल टू -1 by 3 raised to n minus 1. ये सीक्वेंस है. Tn इज इक्वल टू -1 by 3 raised to n minus 1. So what will be the first term? -1 by 3 raised to 0, -1 by 3 raised to 1, -1 by 3 raised to 2, -1 by 3 raised to 3, -1 by 3 raised to 4, so on, -1 by 3
रेस टू n. So पहले n की वैल्यू 1 रखी, 1 minus 1 0. So this any number raised to 0 is 1. This is minus 1 by 3. This is 1 by 9. This is minus 1 by 27. This is 1 upon 81. So on. This is minus 1 by 3 raised to n. इसको अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, सो इफ n becomes larger and larger, same. If n becomes larger and larger, then the terms of the sequence, then terms of the geometric progression become 0. So here, therefore, this also GP. In this GP, the first term is 1 and ratio is minus 1 by 3. This minus 1 by 3 also less than 1. This also less than 1. So here, this minus 1 by 3 raised to n is approaches to 0. Approaches to 0 means it is not equal to 0, but it approaches to 0. I write here is equal to 0, but it is approaches to 0. Approaches to 0. So we have to find the sum of this term. This is called as sum to infinite terms. Infinite terms means what? This n is larger, indefinitely larger, then the terms of geometric progression become 0. So if suppose we have to find is Sn, इसका Sn फाइंड करना है. फर्स्ट एग्जांपल का Sn में फाइंड करता हूँ. बोथ r is less than 1. This is also less than 1. So we have to apply the first formula. What is the first formula? A into 1 minus r raised to n divided by 1 minus r. So what will be this? A is 1 by 2 into 1 minus 1 by 2 raised to n divided by 1 minus 1 by 2. A की जगह पर 1 by 2 रखा, r की जगह पर 1 by 2. So this becomes 1 by 2 into 1 minus 1 upon 2 raised to n divided by 1 by 2. This 1 by 2 cancel. But this term approaches to 0. 1 minus 1 upon 2 raised to n. But this is Sn is equal to 1 minus 0. Because n is larger and larger, that terms become negligible. Negligible means approaches to 0. So here this is called as s is equal to 1, and this 1 is called, इस 1 को हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज सम टू इन्फिनिटी ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इसको क्या कहेंगे? सम टू इन्फिनिटी ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सेकंड एग्जांपल जो है अपना ये एग्जांपल, इसका Sn फाइंड करेंगे हम. Sn इज इक्वल टू ए इज 1 माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 3, because r is minus 1 by 3. So 1 into this 1 minus 1 by 3 raised to n divided by 1 plus 3, 1 plus 1 by 3 plus 1 4 by 3. So ये 4 by 3 इधर 3 by 4 हो जाएगा. 3 by 4 into 1 minus 1 by 3 raised to n, but this term is negligible. So 3 by 4 into 1, this is 3 by 4 and this is capital S, and this 3 by 4 and this 1. फर्स्ट एग्जाम्पल का सम कितना आया था 1, सेकंड एग्जाम्पल का सम कितना आया 3 by 4. दिस 1 and this 3 by 4 is called sum to infinity of GP. इसको क्या कहेंगे? सम टू इन्फिनिटी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. So is it clear? Very simple concept of geometric progression, sum to infinity of geometric progression. मैंने 2 एग्जाम्पल लिए. यहाँ पर एक अपने ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, दोनों पर मैंने r is less than 1 लिया, यहाँ पर r is less than 1 लिया. It means sum to infinite terms of geometric progression only exist for r is less than 1. Modulus r is less than 1. If it is greater than 1, it does not exist. Sum to infinity for r is greater than 1 does not exist. It exists only for modulus r less than 1. Is it clear? So here और एक बार मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ. If n is larger and larger, that is indefinitely larger. So if n is larger and larger,
it means indefinitely larger, then the terms of GP becomes negligible. Negligible means approaches to 0. This is geometric progression because ratio is constant. A is 1 by 2, R is 1 by 2, which is less than 1. So 1 upon 2 raised to n approaches to 0. One more example, this is second example. We have taken, this is the sequence, this is the sequence, right? Sequence को मैंने एक्सप्रेस किया. अब इसको ऑब्जर्वेशन करो, जैसा जैसा डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा वैसा दैट टर्म बिकम्स व्हाट 0. ये तो मैथमेटिक्स है. डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो दैट टर्म बिकम्स स्मॉलर. ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे हम बड़े नंबर से, so that becomes term smaller, 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 smaller to becomes approaches to 0. So here this approaches to 0, we find the sum of nth term of this and sum of nth term of this. So both example having R is less than 1, R is less than 1. So here, so this term is 0 because we write there that approaches to 0. So S is equal to 1. This 1 is called sum to infinity of geometric progression. उधर कितना आया 3 by 4. This 3 by 4 is called as sum to infinity of geometric progression. So what is sum to infinity of geometric progression? If Sn of GP takes the certain value S, approaches to S, and if that S is called as sum to infinity of geometric progression when n is larger and larger, right? And more important thing is what this sum to infinity exists for modulus R is less than 1. Modulus क्यों लिया यहाँ पर? Because modulus means absolute value. Absolute value means we taken as always positive. It is less than 1 रहा तो भी it is exist. If it is greater than 1, sum to infinite terms of GP does not exist. Is it clear? सो ये हो गए दो एग्जाम्पल से दैट आइडिया ऑफ सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी डेफिनेटली क्लियर. अब इसके डेफिनेशन हम डिफाइन करेंगे बाय दैट ऑब्जर्वेशन, बाय दैट टू एग्जाम्पल्स. सो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी. डेफिनेशन फॉर अ जीपी Sn approaches a certain number yes when n is indefinitely larger Sn approaches a certain number. Yes, एक Sn एक अगर एक ऐसा नंबर अप्रोच करेगा, एक ऐसा नंबर आएगा when n is larger and larger, indefinitely larger, then S is called sum to infinite terms of geometric progression. So from first example number 1 में क्या था? 1 is sum to infinite term, and second example में जो second example था वो सेकंड एग्जाम्पल 1 + 3 by 4 ये 1 + 1 by 3 ये 4 by 3 आया था, उसका रेशियो 3 by 4 आया था. सो 3 by 4 इज सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, दिस इज द फॉर्मूला. Sn इज इक्वल टू A into 1 minus R raised to n divided by 1 minus R for R is less than 1. ये आपने S का फॉर्मूला है, Sn का फॉर्मूला. अगर A से मल्टीप्लाई किया सो A into 1 is A upon 1 minus R माइनस A से इसको मल्टीप्लाई किया A into R raised to n divided by 1 minus R. So R raised to n approaches to 0.
ये टर्म 0 बन जाएगी बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज n इज indefinitely larger. N is indefinitely larger. Therefore, Sn is equal to a upon 1 minus r minus 0. This term, total term becomes what? 0. So therefore, this S is equal to a upon 1 minus r. So this is a formula. S is equal to a upon 1 minus r is called sum to infinity of GP. इसको हम कहेंगे सम टू इन्फिनिटी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम टू इन्फिनिटी? इन्फिनिटी और इनफाइनाइट टर्म्स आर टू बी सेम. सो यस, कैपिटल S is equal to a upon 1 minus r, where a is the first term of GP and r is the common ratio which is constant, that is small r, right? And here the important case or concept case, modulus r sum to infinity of GP exist only for modulus r less than 1. सम टू इन्फिनिटी ऑफ GP, इसको केस नहीं, इसको रिमार्क कहेंगे. इट इज रिमार्क. सो इतना याद रखना है आपको. सम टू इन्फिनिटी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एग्जिस्ट ओनली फॉर मॉडुलस r इज लेस देन 1. दैट इज सम टू इन्फिनिटी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन does not exist for modulus r greater than or equal to 1. 1 भी रहा और 1 से greater भी रहा, that sum to infinity of geometric progression does not exist. So it is very very simple idea about this sum to infinite terms of geometric progression. Sum to infinite terms of geometric progression is nothing but S is equal to a upon r. So see the definition for GP. Sn approaches a certain number S. एक certain number S approach करेगा when n is larger and larger. When n is larger and larger means what? That r raised to n becomes what? 0. r raised to n 0 बन जाएगा तो that S is called as the sum to infinite terms of geometric progression, right? सो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल में 1 था, सम टू इनफाइनाइट ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और सेकंड जो एग्जाम्पल मैंने लिया था दैट इज फॉर -1/3 वहां पर आंसर कितना आ गया था? 3/4. सो इट इज टोटल आइडिया अबाउट दिस सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये उसका फॉर्मूला मैंने डिराइव कैसे किया? ये अपॉन 1 माइनस आर, ये से 1 से मल्टीप्लाई करा, ये ने इसको मल्टीप्लाई किया, दिस टर्म इज 0, सो टोटल टर्म बिकम 0. Total term becomes 0 because of r raised to n is 0. Why r raised to n is 0? Because n is larger and larger. If n is larger and larger, then r raised to n approaches to 0. That is negligible term means 0. So here, so that's why Sn is equal to only a upon 1 minus r, and that a upon 1 minus r उसको हम क्या कहेंगे? Yes. ये अपॉन 1 माइनस आर. सो ये GP है, सो इट इज ऑब्वियसली ये इज द फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड r इज द कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये उसकी इंपॉर्टेंट रिमार्क है. r लेस देन 1 है तो ही सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP एग्जिस्ट. If r is greater than or equal to 1, sum to infinity does not exist. Okay, so this is the study of sum to infinity of geometric progression. After this, immediately we will take examples, that is exercise 2.3.
Now see the third exercise of this topic, sequence and series. Third exercise 2.3. So that is on sum to infinite terms of geometric progression. So what is the first example? See, read the example. Determine whether the sum to infinity of the following GPs exist. हमें सिर्फ डिटरमाइन करना है, चेक करना है, एग्जामाइन करना है कि सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट है या नहीं. Sum to infinity completely depends on r is less than 1 or greater than 1. So that r must be modulus r, means always taken as positive value. If exist, अगर exist है तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है. यस फाइंड करना है, सम टू इन्फिनिटी फाइंड करना है. सो वन बाय वन सॉल्व करेंगे. 5 एग्जाम्पल्स, उसमें एक मैंने स्किप किया है. 1, 2, 4th एंड 5th. थर्ड एग्जाम्पल मैंने स्किप किया है. तो सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सबका सोल्यूशन. नंबर फर्स्ट, आई विल राइट द सीक्वेंस हियर 1/2, 1/4. ये तो अपना एग्जाम्पल ही था अभी का. 1/16 in a GP. First term is 1/2. Common ratio is also 1/2. So modulus r is 1/2, which is less than 1. Modulus r कितना है? 1/2 है, which is less than 1. Therefore, sum to infinity of GP exist. Sum to infinity of GP exist. So exist तो फाइंड करेंगे उसको. So a upon 1 minus r, इसका सिंपल फॉर्मूला कैपिटल S is equal to a upon 1 minus r. So what is a here? A is 1/2. What is r here? Which is also 1/2. 1/2 divided by 1 minus 1/2 is also 1/2. So answer is what? 1. So ये इसका पहले फर्स्ट का आंसर कितना आ गया? 1. सो अभी हमने यही एग्जाम्पल लिया था जब मैंने ये कंसेप्ट एक्सप्लेन की थी. सो सेम एग्जाम्पल लिया था, वही एक्सरसाइज में आ गया. सो वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल. सो दिस इज सेकंड एग्जाम्पल. सेकंड एग्जाम्पल में क्या है देखो. 2, 4/3 है, 8/9 है, 16/27 है. सो फर्स्ट टर्म इज 2. दिस इन GP. In a GP, first term is 2. रेशो ये 2/3 है. रेशो कितना है? 2/3 है. चेक करके देखो. 8/9 upon 4/9, 4 2s are 8, 3 3s are 9, means 2/3. And this 2/3, so modulus of 2/3, it is also 2/3, which is less than 1. Therefore, sum to infinity of GP exist. So find out that S is equal to A upon 1 minus R. अब उसको फाइंड करेंगे. फॉर्मूला सिंपल है. S is equal to A upon 1 minus R. So here A is 2, R is 2/3. So 2 divided by 3 minus 2 is 1/3. So 3 ऊपर जाएगा, 3 into 2 becomes 6 बन जाएगा. So 6 is the sum, but this is sum is called as sum to infinite terms of this geometric progression. So ये उसका आंसर है. सिर्फ हमें पहले चेक करना एग्जिस्ट है या नहीं. दो एग्जाम्पल का आंसर तो एग्जिस्ट था. अब विल टेक द थर्ड एग्जाम्पल. अभी थर्ड एग्जाम्पल कौन सा है देखो. अपने एक्सरसाइज में फोर्थ एग्जाम्पल है. सो विल राइट द नंबर सेम. एग्जाम्पल नंबर 4. व्हाट इज द फोर्थ एग्जाम्पल? 1/5 minus 2/5. One by 5 minus 2/5, 4/5 minus 8/5, 16/5.
in a GP, first term is 1/5, रेशियो इज -2. ये -2 लेस देन 1 है, लेकिन हमें आर नेगेटिव नहीं चाहिए, आर पॉजिटिव लेना है हमें. सो देयरफॉर मॉडुलस आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -2, एंड मॉडुलस ऑफ -2 इज व्हाट 2. सो देयरफॉर मॉडुलस ऑफ आर विच इज ग्रेटर देन 1. सो यहाँ पर प्रिकॉशन लेना है. यहाँ पर आर कितना आया, -2 आया. ये -2 कहाँ से आ गया, दिस बाय दिस करो, 4/5 अपॉन -2/5 करो, -8/5 अपॉन 4/5 करो, डेफिनेटली -2 आ जाएगा. 16/5 डिवाइडेड बाय -8/5, डेफिनेटली -2 आ जाएगा. दिस -2 इज लेस देन 1, बट सिर्फ हमें आर लेस देन 1 नहीं चाहिए, हमें मॉडुलस आर लेस देन 1 चाहिए. मॉडुलस आर कितना आ गया, 2 आ गया. मॉडुलस मीन्स इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, लेंथ है. मॉडुलस मीन्स लेंथ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी which has only magnitude, means it is taken as always positive. So +2 which is greater than 1. So therefore sum to infinity of GP does not exist. Does not exist. ये उसका आंसर. 5 नंबर देखो कितना है, 9, 8.1, 7.29. एग्जाम्पल में चेक करता, 1 मिनट. करेक्ट है, 7.29 है. सो इन अ GP फर्स्ट टर्म इज 9, रेशियो इज 0.9. साइड में डिवाइड करके देखो, 7.29 डिवाइडेड बाय 8.1, सो इट इज 9, इट इज 0.9. So R, modulus R is equal to modulus of 0.9, and modulus of 0.9 is 0.9, which is less than 1. So therefore sum to infinity of this GP is exist है. So therefore we have to find the sum. yes find करना है. So S is equal to A is 9, 1 minus R is 0.9. R कितना है, 0.9 है. So 9 divided by 0.1, 9 divided by 0.1. So 9 को 0.1 से डिवाइड किया तो 90 हो जाएगा. ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, दैट बिकम्स 90. सो ये उसका आंसर है. सो दिस इज द आंसर ऑफ 4th एग्जाम, दैट इज 5th एग्जाम्पल ऑफ दिस. सो दिस इज द सम टू इन्फिनिटी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सिर्फ यहाँ पर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पर आर कितना आया था, -2, लेस देन 1 है डेफिनेटली, बट मॉडुलस इज 2 विच इज ग्रेटर देन 1. मॉडुलस ऑफ आर ग्रेटर देन 1 है, सो सम टू इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट. सो दिस इज द आंसर्स. ओके, so let us see the next concept, rational number. अब देखोगे, आप पूछेंगे रैशनल नंबर तो हमें 7th स्टैंडर्ड में हुआ था, सो अब ये क्यों रिपीट हो रहा है. सो रैशनल नंबर मीन्स व्हाट, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q. जो भी नंबर इस फॉर्म में होता है उस नंबर को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर. ये PQ क्या है, दिस PQ आर रियल नंबर्स एंड Q रियल नंबर्स, and Q is not equal to 0. So this form is called as the rational number. This is the number, rational number. But this rational number expressed in either in decimal form or recurring form. For example, this is a 4/5, 0.8. 4/5 कितना होता है, 0.8. So this is called as the decimal form. एंड सपोज ऐसा है 1/3 है,
So 0.3333 so on. So this is called as a recurring form. उसको 3 बार लिखते हैं, 0.3 बार, इसको हम कहते हैं recurring form. So here what is the purpose here? Rational number is either expressed in decimal form or recurring form. एक तो decimal form होता है ना तो recurring form होता है. If neither decimal form nor recurring form, that number is called as what? Irrational number. Irrational number means what? A number which is neither terminating nor recurring. Such a number is called as what? Irrational number. So come to the point, rational number. रैशनल नंबर एक आइदर इन द डेसिमल फॉर्म होता है, नहीं तो क्या होता है, रिकरिंग फॉर्म होता है. सो अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. वी कैन एक्सप्रेस रिकरिंग फॉर्म इनटू डेसिमल, रिकरिंग फॉर्म इनटू रैशनल नंबर. सो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. expressing a recurring form to rational number. To rational number, ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बाय यूजिंग जीपी. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से हम इसको कौन सा भी रिकरिंग फॉर्म हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो यही देखो, दिस इज रैशनल नंबर इनटू रिकरिंग फॉर्म. अब रिकरिंग फॉर्म से रैशनल नंबर कैसे आते हैं देखो, हम 0.3 बार है, 0.3 बार. सो वी राइट 0.3333333 अप टू इन्फिनिटी. सो अप टू इन्फिनिटी है, सो वी कैन यूज सम टू इन्फिनिटी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. हम उसको ये एप्लीकेशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं. सो वी हैव टू राइट 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.0003 so on. So this is GP. This is geometric progression. First term is 0.3. अब इसको R फाइंड करो, वो डेफिनेटली 0.1 आ जाएगा. 0.1 साइड में कैलकुलेशन करके दिखाता हूं मैं. दिस बाय दिस करेंगे, 0.003 डिवाइडेड बाय 0.03. थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म 0.003 डिवाइडेड बाय 0.03. ये ऊपर 3 है, नीचे 2 है. सो हम इसके ऐसे लिखेंगे 3/30 लिखेंगे, 3/30. सो 3/30 कितना होता है, 1/10 होता है. सो 1/10 कितना होता है, 0.1 होता है. सो 0.1 दैट इज द कॉल्ड द कॉमन रेशियो. फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म करो, वही आ जाएगा, 3/30 आ जाएगा. 3/30 मीन्स 1/10, 1/10 में 0.1. सो दिस 0.1 इज मॉडुलस आर विच इज 0.1. मॉडुलस 0.1 इज 0.1 विच इज लेस देन 1. ये सबसे इंपॉर्टेंट. Therefore S is equal to A/1 minus R. ये कितना है, 0.3 है. R कितना है, 0.1 है. 0.3 डिवाइड 1 से 0.1 सब्सट्रैक्ट करो, 1.0 माइनस 0.1 इज 0.9 डिवाइडेड बाय 0.9 हो गया. हम ये डेसिमल एलिमिनेट कर सकते हैं, 3/9 आ जाएगा. 3/9 कितना है, 1/3. सो देखो आंसर आ गया. सो दिस इज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. वी कैन एक्सप्रेस रिकरिंग फॉर्म इनटू रैशनल नंबर. सो ये तो सबको पता है, 0.3333 किसका डिवीजन है, 1/3 का. लेकिन सपोज ऐसे फाइंड करना है हमें, 2.45 बार ये रिकरिंग फॉर्म दिया है, जिसके ऊपर बार है, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग फॉर्म. 3.25 टोटल बार, 25 बार. 4.398 बार, 98 बार. सो ऐसे रिकरिंग फॉर्म हम डायरेक्टली रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको हमें जीपी से ही सॉल्व करना पड़ेगा. सो जीपी का कौन सा आर्टिकल है वो, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. वी कैन एक्सप्रेस रिकरिंग डेसिमल
इनटू रैशनल नंबर। ओके, अभी जो ऐसे एग्जांपल से हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सप्रेसिंग रिकरिंग डेसिमल, इसको रिकरिंग डेसिमल कहेंगे, रिकरिंग डेसिमल टू रैशनल नंबर। ये जो है 4/5 0.8, इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग फॉर्म, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको कहेंगे रिकरिंग डेसिमल। ये दो डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स इसके आगे डिवीजन पॉसिबल, यहाँ पर स्टॉप टर्मिनेट होता है, टर्मिनेट हुआ मीन्स वो स्टॉप हुआ, एग्जिस्ट हुआ, सो दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कौन सा है, रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द application of geometric progression, that is called as what, sum to infinite of geometric progression. So what is heading, expressing recurring decimal to rational number. So ये है terminating decimal, ये कौन सा है, रिकरिंग डेसिमल। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर डेसिमल फॉर्म लिखा था, ये दोनों भी डेसिमल फॉर्म है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नीचे का कौन सा है, रिकरिंग डेसिमल। सो अब इस पर हम एग्जांपल लेंगे। ओके, so now example number 2, express the recurring decimal into rational number by using sum to infinite terms of geometric progression. So one by one example solve करेंगे, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। so first example 0.7 बार है, so इसको हम 0.77777 ऐसे राइट करेंगे अप टू इनफाइनाइट। तो बार का मतलब ही होता है वो अप टू इनफाइनाइट टर्म्स है, वहाँ से आगे। So it is 0.7 plus 0.07 plus 0.007 plus so on. So here is a GP, ये geometric progression है। इसकी फर्स्ट टर्म 0.7 है, रेशो 0.1 आता है। So modulus R is less than 1, therefore S is equal to A upon 1 minus R। ये कितना है, 0.7 है, R कितना है, 0.1 है। 0.7 divided by 0.9, आंसर इज 7/9। सो दिस इज अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है, लेकिन हमने सॉल्व किया सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वेरी सिंपल प्रोसेस, सिर्फ हमको इसको एक्सप्रेस करना है, जीपी दिखना चाहिए, वो वहाँ पर ये आर डिफाइन होना चाहिए, तभी इसका आंसर बन जाएगा। वो रिकरिंग डेसिमल था, ये उसका रैशनल नंबर है। सेकंड एग्जांपल 2.4 बार, 2.4444444 so on up to infinite. So this is equal to 2 plus 0.4444। उसमें 2 जो इंटीग्रल पार्ट है उसको मैंने सेपरेट लिखा, क्योंकि वो जीपी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इस इंटीग्रल पार्ट जो उसका है उसको सेपरेट किया मैंने। 2 प्लस 0.4 0.004 0.0004 ऐसा आ जाएगा। सो यहां से आगे मैं इसको अंडरलाइन करता हूं, यहां से आगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इज अ जीपी, फर्स्ट टर्म इज 0.4, कॉमन रेशियो इज 0.1, सो मॉडुलस आर इज लेस देन 1, सो देयरफॉर एस इज इक्वल टू, ये तो 2 आ जाएगा, 2 यहां पर ए अपॉन 1 माइनस आर, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, कर लिया अंडरलाइन किया, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये 2 इंटीग्रल पार्ट एज इट इज लिखा, 2 प्लस ए कितना है 0.4, 1 माइनस 0.1, सो 2 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाय 0.9। अब इसको हम आगे कैरी करेंगे, यस इज इक्वल टू 2 प्लस 4/9, 18 प्लस 4 22/9, ये उसका रैशनल नंबर है। इसको डिवाइड करके देखो, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं आएगा, रिकरिंग फॉर्म में आएगा, वो उसका रिकरिंग डेसिमल है।
वो उसका आंसर है। सेकंड का आंसर आप थर्ड सॉल्व करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखो क्या है। सो हियर 2.35 बार। सो इसको कैसे कैरी करेंगे? 2.35555 सो ऑन। जिसके ऊपर बार लिखा है वही नंबर रिपीट हो जाएगा। 3 उसमें इंक्लूड नहीं होगा कि 3 के ऊपर बार नहीं है, वहां से आगे वो रिकरिंग फॉर्म है। सो दिस इक्वल टू 2.3 प्लस 0.05 0.05 प्लस 0.005 प्लस 0.0005। बस हो गए। इसके आगे एक और एक जीरो आप लिखना पड़ेगा आपको। एक जीरो यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, 0.5 सो ऑन। सो ये पार्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं आएगा, इसमें सिर्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा। सो उसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये उसके अंडरलाइन इज जीपी whose first term is 0.05, ratio is 0.1, modulus r is less than 1। सबका 0.1 ही कॉमन रेशियो आता है यहाँ पर। देखो यहाँ पर अभी यस फाइंड करेंगे, इसकी सम फाइंड करना है, तो ये 2.3 तो एज इट इज कैरी रखेंगे इसको। इसके आगे जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम टू इन्फिनिटी ऑफ जीपी ए अपॉन 1 माइनस आर। दिस 2.3 एज इट इज। इसको हम सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको सेपरेट लिखना, दिस इज अ जीपी, उसका यस फाइंड करो, आने के बाद इसमें ऐड करो, दिस इज टू बी सेम, एब्सोल्युटली टू बी सेम। सो ये इज 0.05, R is 0.1, 2.3 plus 0.05 ये 0.05 ये फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 0.9। सो आंसर अब ऐसा आएगा 2.3 प्लस ये 5/90 हो जाएगा, 5/90 ये 23/10 प्लस 5/90। 23/10 मीन्स 2/3। अब देखो यहाँ पर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अब 90 एन CLCM लिखेंगे यहाँ पर, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 9 3 जा 27, 2 9 to the 18 plus 2 plus 5, 212 divided by 90, 212 divided 9 3 are 27, 7 2 2 2 9 to the 18 plus 2 20, करेक्ट। सो अब इसको अब 2 से डिवाइड करो, 106 डिवाइडेड बाय 45। सो और मोर सिंप्लीफिकेशन देखो हो सकता है तो लिखो, नहीं तो यही उसका आंसर है 106 डिवाइडेड बाय 45। ये आंसर होगा थर्ड का। अभी फोर्थ आप एग्जांपल आप ट्राई कीजिए, मैंने 1 2 3 सॉल्व करके दिए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सम टू इन्फिनिटी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सम टू इन्फिनिटी ऑफ फॉर्मूला S is equal to A upon 1 minus R. It is only exist for modulus R is less than, strictly less than 1. It is not exist for modulus R greater than or equal to 1. ये उसमें देखा rational number either in the two form, either in the terminating form or recurring form. टर्मिनेटिंग फॉर्म तो कुछ ज़रूरत नहीं है, रिकरिंग फॉर्म से हम रैशनल नंबर एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेसिंग द रिकरिंग डेसिमल इनटू रैशनल नंबर बाय यूजिंग सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, ये हमने देखा। इसके बाद बाकी और बहुत सारे एग्जांपल्स है 2.3 में। सो विल टेक ऑन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो टुडे विल स्टॉप हियर। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे होम एंड स्टे सेफ।